حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اسی طریقے سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ فقال هذا سبیل اللہ مستقیما وخط السبل وخط خطوطا عن یمینہ وشمالہ وقال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعوه، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، ایک لائن کھینچا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے خطوط کھینچے، دائیں طرف اور بائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی، لائنیں بنائیں، اور کہا کہ یہ سب شیطانی راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس راستے کی طرف بلا رہا ہے، گمراہی کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور ان راستوں پر بیٹھ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں، دوسری راہیں ہیں، ان پر مت چلو، ان کی پیروی مت کرو۔ یہ سارے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے تمہیں دوسرے راستوں پر لگا دیں گے۔ محترم حضرات، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت تک پہنچانے والا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ وہی سیدھا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب جہنم کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ ہر وہ راستہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ نہیں بتایا ہے، جنت کا راستہ نہیں بتایا ہے، حق کا راستہ نہیں بتایا ہے،
नजात का रास्ता नहीं बताया है, वो रास्ता गुमराही का रास्ता है, वो रास्ता जहन्नम में ले जाने वाला है, वो रास्ता शैतान का रास्ता है। लिहाजा अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, हिदायत के रास्ते पर रहना चाहते हैं, नजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते के बारे में हमें हुक्म दिया है कि हम उस पर चलें, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों से दूर रहना चाहिए। हमें एहतियात बरतना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए। सीधे रास्ते पर चलते हुए दाएं बाएं बहुत सारे रास्ते आएंगे, हमें भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीधे रास्ते पर हमें जाना होगा और तमाम दाएं बाएं जो रास्ते हैं मंजिल से भटकाने के लिए, उनसे बचना होगा। एक रास्ता सीधा है जिसकी तरफ अल्लाह बुला रहा है, जिसकी तरफ उसके रसूल ने बुलाया है, और बाकी उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो शैतान उसकी तरफ बुला रहे हैं, उन रास्तों से हमें बचना होगा। मुहतरम हज़रात, शैतान मुख्तलिफ़ रास्तों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को गुमराह करता है, सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। किसी को शैतान बेदीनी और बेअमली के रास्ते पर लगा देता है, अल्लाह के रास्ते से दूर करने के लिए किसी को शैतान बेदीनी और बेअमली के रास्ते पर लगा देता है। किसी को शैतान ज़िनाकारी के रास्ते पर लगा देता है, किसी को शराब नोशी के रास्ते पर लगा देता है, किसी को जुआबाजी के रास्ते पर लगा देता है, किसी को सूदखोरी के रास्ते पर लगा देता है, किसी को झूठ के रास्ते पर लगा देता है। बहुत सारे रास्ते हैं गुमराही के, जिनका इस्तेमाल करके शैतान सीधे रास्ते से इंसान को रोकने की कोशिश करता है। उन्हीं गुमराह रास्तों में से एक रास्ता शिर्क व बिदअत का रास्ता है। इंसान सीधे रास्ते पर जब चलता है या चलना चाहता है तो शैतान मुख्तलिफ हथकंडों से उसे उससे दूर करने की कोशिश करता है। उसी में से एक रास्ता शिर्क और बिदअत का रास्ता है, और ये शिर्क व बिदअत का रास्ता तमाम रास्तों से ज़्यादा ख़तरनाक है। जितने भी गलत रास्ते बयान किए गए, बड़े बड़े गुनाह, उन तमाम गुनाहों में सबसे ख़तरनाक शिर्क व बिदअत का गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। ज़िनाकारी, बदकारी, सूदखोरी, जुआबाजी, शराब नोशी, जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, अमानत में ख़यानत करना, वादा खिलाफ़ी करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, जितने भी रास्ते हैं, बेईमानी का रास्ता, चोरी का रास्ता, डकैती का रास्ता, लूट मार, जितने भी रास्ते हैं, इन तमाम रास्तों से ख़तरनाक शिर्क व बिदअत का रास्ता है। ये सब भी ख़तरनाक हैं, संगीन हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन शिर्क व बिदअत का रास्ता है। क्यों? इसलिए कि शिर्क के बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों को अल्लाह चाहे तो माफ़ कर देगा। तो इससे मालूम हुआ कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और बिदअत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, अपने हर दर्स में, हर वाज़ो नसीहत में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हाजत पढ़ते थे तो उसमें बिदअत पर तंबीह करते थे, नसीहत करते थे कि बिदअत से दूर रहना। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, तमाम बातों में सबसे बुरी बात बिदअतें हैं, दीन में ईजाद करदा नई नई चीज़ें हैं, और हर नई चीज़ दीन में ईजाद करना बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। सबसे ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क व बिदअत ही से रोका है। तो शिर्क व बिदअत का रास्ता भी ये शैतान का रास्ता है।
दीनदार लोगों को शैतान शिर्क व बिदअत के रास्ते से गुमराह करता है। शैतान को मालूम होता है ये नमाजी है, ये रोज़ेदार है, ये दीनदार है, शराब, जुए, ज़िनाकारी, बदकारी, सूदखोरी और दूसरे गुनाहों में इनको मुब्तला करना मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, दीन के नाम पर गुमराह करते हैं और शिर्क व बिदअत में लोगों को फंसा देते हैं। ऐसे लोगों को शिर्क व बिदअत का रास्ता, शिर्क व बिदअत का जो गुनाह है ये सबसे ख़तरनाक और सबसे संगीन इसलिए भी है कि शिर्क व बिदअत करने वाला शिर्क व बिदअत को दीन के नाम पर अंजाम देता है, उसको सुन्नत समझ के अदा करता है, अजर और सवाब की उम्मीद रखता है। वो गुनाह समझता ही नहीं है, वो समझता है कि नेक काम कर रहे हैं। इसलिए शैतान सबसे ज़्यादा इसी पर खुश होता है। तौबा करने की भी उम्मीद बहुत कम होती है, इसलिए कि वो गुनाह समझता ही नहीं है। दूसरे गुनाहों को इंसान अगर करता है तो गुनाह समझ के करता है, एहसास होता है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ और उसे अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाती है, वो तौबा कर लेता है। लेकिन जो गुनाह को गुनाह ही ना समझे, उसको नेकी समझे, तो वो कैसे तौबा करेगा? बहुत कम तौफीक मिलती है। तो इसलिए शिर्क व बिदअत का जो गुनाह है सबसे बड़ा गुनाह है। मुहतरम हज़रात, शैतान के इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता ये है कि इंसान को सुन्नत से दूर करके बिदअत की तरफ ले जाता है। जो सुन्नत है, जो अमल साबित है, उससे दूर कर देता है, और जो बिदअत है, जो अमल साबित नहीं है, उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, उस रास्ते पर उसको लगा देता है। और जैसा कि सलफ़ सालिहीन का कौल मौजूद है कि मा अहदथ कौमुन बिदअतन इल्ला रुफ़िअ मिस्लुहा मिन सुन्नह फतमस्सुकुम बिसुन्नतिन खैरुम मिन इहदास बिदअ। कोई भी कौम अगर कोई बिदअत ईजाद कर लेती है तो सज़ा के तौर पर उस कौम से उसी के मिसल एक सुन्नत को उठा लिया जाता है। लिहाजा सुन्नत को लाजिम पकड़ना बेहतर है इस बात से कि बिदअत ईजाद की जाए, बिदअत पर अमल किया जाए। सुन्नत पर अमल करना बेहतर है, बिदअत पर अमल करना ये किसी सूरत में बेहतर नहीं है। कोई भी बिदअत अच्छी नहीं होती है, हसना नहीं होती है, सारी बिदअतें गुमराही हैं, बुरी हैं। इस तरह की बाज़ रिवायतें भी हैं और सलफ़ सालिहीन का कौल भी है। तो मुहतरम हज़रात, शैतान का एक हथकंडा है सुन्नत से दूर करके बिदअत में मुब्तला कर देना। इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये शाबान का महीना है। अभी शाबान का महीना चल रहा है, 9 या 10 तारीख़ है आज। 15 तारीख़ को, शाबान की 15 तारीख़ को बहुत सारी बिदअतें अंजाम दी जाती हैं। शब बरात की बिदअत, शब बरात मनाना ये बिदअत है दिन के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी बिदअतें शामिल होती हैं। लोगों ने सुन्नत को छोड़ दिया और बिदअत का इर्तिकाब कर लिया, बिदअत ईजाद कर ली तो सुन्नत ख़त्म हो गई। शाबान के महीने में सुन्नत क्या है? शाबान के महीने में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है कसरत के साथ रोज़े रखना। शाबान के महीने में नफली रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मा रअयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सियाम मिन्हु फ़ी शाबान काना यसूमुहु इल्ला क़लीला काना यसूमुहु कुल्लहु, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में इतना ज़्यादा रोज़ा रखते हुए नहीं पाया है। आप पूरे शाबान का रोज़ा रखते थे सिवाय चंद अय्याम के, बल्कि कभी कभी तो आप पूरे शाबान का रोज़ा रखते थे। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है। इससे क्या मालूम हुआ कि रमज़ान का रोज़ा तो फ़र्ज़ है, पूरे रमज़ान का रोज़ा रखना सब पर वाजिब है, लेकिन पूरे 12 महीनों में नफली रोज़ों की अगर बात की जाए तो तमाम महीनों में शाबान का महीना वो महीना है जो रोज़ा रखने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में खूब रोज़ा रखते थे। बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में वारिद हैं। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, दूसरे महीनों में आप इतना रोज़ा नहीं रखते हैं, इसकी हिकमत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाका शहरुन यग़फ़लुन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान, कि शाबान का महीना वो महीना है कि जो रजब और रमज़ान के दरमियान पड़ता है और इस वजह से लोग इसमें गफलत बरतते हैं। रजब का महीना हुर्मत वाला महीना है, लोग एहतमाम करते हैं। रमज़ान का महीना फ़र्ज़ रोज़ों का महीना है, लोग एहतमाम करते हैं। इन दोनों के बीच में शाबान का महीना आता है तो लोग इसकी अहमियत नहीं समझते हैं और गफलत बरतते हैं। वहाज़ा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन, हालांकि शाबान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बंदों के अमाल उठाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। व अना उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, और मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोज़ा रखता हूँ शाबान के महीने में। मालूम ये हुआ कि शाबान का महीना रोज़ा रखने का महीना है। शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखे। ये सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत पर मुसलमानों के यहाँ बहुत कम अमल होता है। बहुत कम मुसलमान हैं जो इस सुन्नत पर अमल करते हों। इसके मुकाबले में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जिसे इस सुन्नत से कोई मतलब नहीं, लेकिन बिदअत ज़रूरी तौर पर अंजाम देते हैं। शब बरात मनाना, शब बरात ये बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, ताबिईन ने, तबा ताबिईन ने, हमारे चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद और जितने भी अइम्मा गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उन्होंने शब बरात न मनाई है, न मनाने का फतवा दिया है। लिहाजा ये बिदअत है दीन के अंदर, और हर बिदअत गुमराही है। लेकिन अफसोस की बात है कि शैतान किस तरह से इंसान को गुमराह कर देता है। सुन्नत से कोई मतलब नहीं है आज लोगों को, लेकिन बिदअत से बहुत प्यार है। सुन्नत तो दूर की बात, फ़र्ज से भी साल भर कोई मतलब नहीं होता है। फ़र्ज़ नमाज़ों से, फ़र्ज़ रोज़ों से लोगों को मतलब नहीं होता है, लेकिन इस तरह की बिदअतें, चाहे ईद मिलादुन नबी हो या शब बरात हो या इस तरह की जितनी भी बिदअतें हैं, ऐसे लोग पेश होते हैं जिन्हें फ़र्ज़ और सुन्नत से कभी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसमें सबसे आगे रहते हैं। हर तरह का ताउन पेश करते हैं, हर तरह से शिरकत करते हैं। ये गुमराही का रास्ता है। शैतान ने फ़र्ज़ से, सुन्नत से दूर कर दिया है और बिदअत और गुमराही के रास्ते पर लोगों को लगा दिया है। लोग समझते हैं कि साल में इस तरह के रस्म व रिवाज को अदा करके, इस तरह की महफिलों में शरीक होकर पूरे साल भर के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या ज़रूरत है फ़र्ज़ और सुन्नत की पैरवी करने की? मुहतरम हज़रात, तो ये शैतान का हथकंडा, इससे बचना चाहिए। शब बरात मनाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की सुन्नत नहीं है, ताबीन की सुन्नत नहीं है। खैरुल कुरून में ये नहीं मनाया जाता था। मुहतरम हज़रात, शब बरात में दिन को रोज़ा रखना और रात को नमाज का एहतमाम करना, और इसी तरीके से इस मौके पर कब्रिस्तान की ज़ियारत करना और चिरागा करना, आतिशबाजी करना और नए नए अच्छे पकवान पकाना, अच्छे कपड़े पहनना और महफिलें सजाना, ये सारी चीज़ बिदअत है, गुमराही है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने ऐसा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नहीं दिया है। सुन्नत यह है कि रोज़ाना रात में क़ियामुल लैल किया जाए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाए, ये सुन्नत है। सुन्नत ये नहीं है कि साल भर कोई मतलब नहीं है और शब बरात में तहज्जुद पढ़ें, क़ियाम पढ़ें, खुसूसी नमाज़ पढ़ें, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत ये है कि हर हफ्ते पीर के दिन और जुमरात के दिन रोज़ा रखा जाए, हर महीने 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखा जाए। इस सुन्नत से लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन शब बरात को रोज़ा रखते हैं, दिन में, रात को खुसूसी नमाज पढ़ते हैं। सुन्नत को छोड़ते हैं और बिदअत को इख्तियार करते हैं। सुन्नत यह है कि हमेशा गाहे बगाहे जब भी इंसान को मौका मिले कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी चाहिए। उससे मौत की याद आती है, इंसान को इबरत और नसीहत हासिल होती है। इंसान को हमेशा जाना चाहिए अपने दिल को नरम करने के लिए। लोग इस सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन शब बरात के मौके पर ज़रूर कब्रिस्तान जाते हैं। तो मुहतरम हज़रात, देखिए किस तरह से लोग फ़र्ज़ और सुन्नत का एहतमाम नहीं करते हैं, लेकिन बिदअत के कामों में पेश रहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शैतान का एक रास्ता है, जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, उसकी रोशनी में आप समझ सकते हैं। लिहाजा मुहतरम हज़रात, सुन्नत पर अमल कीजिए, बिदअत को छोड़िए। आखिरी बात शब बरात के ताल्लुक़ से याद कर लीजिए कि शब बरात के बारे में जो लोग भी बयान करते हैं
लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और आयतों और हदीसों को पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। न कुरान में कहीं शब बारात का तज़किरा है और न ही हदीसों में शब बारात का तज़किरा है। ये नाम भी, ये लफ्ज़ भी शब बारात का या लैलतुल बरात का न कुरान में आया है न हदीस में आया। शब क़द्र, लैलतुल क़द्र के बारे में जो आयतें हैं उनको पेश करते हैं और शब बारात के नाम पर धोखा देते हैं, हालांकि वो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है। और इसी तरह से जितनी भी हदीसें पेश की जाती हैं वो सारी की सारी मुहद्दिसीन किराम ने कहा कि ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मनगढ़ंत है, झूठी हदीस हैं, कुछ भी साबित नहीं होता है। शब बारात यानी शाबान की जो 15 तारीख़ है उसकी रात के बारे में एक हदीस हसन या सही हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होता है और अपने तमाम बंदों को माफ़ कर देता है सिवाय 2 शख्स के, शिरक करने वाला और कीना रखने वाला। इन दोनों को अल्लाह माफ़ नहीं करता, बाकी सबको माफ़ कर देता है। शाबान की 15 तारीख़ की रात के बारे में एक रिवायत इस तरह से आती है कि अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देता है और शिरक करने वाले को और कीना रखने वाले को माफ़ नहीं करता है। इस हदीस से क्या मालूम होता है? इस हदीस से कहीं ये नहीं मालूम होता है कि दिन में रोज़ा रखो और रात में नमाज़ पढ़ो। अगर आदत है आपको हमेशा रोज़ा रखने की तो रखिए, हमेशा नमाज़ पढ़ने की आदत है तो नमाज़ पढ़िए, लेकिन साल भर कोई मतलब नहीं है और इस तारीख़ को अगर रोज़ा नमाज का एहतमाम करते हैं तो ये बिदअत है, ख़ास करना किसी को। इस हदीस से ये मालूम होता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत चाहिए, माफ़ी चाहिए तो शिर्क से तौबा कर लीजिए और कीना से दूर हो जाइए। शिर्क को ख़त्म कीजिए, शिर्क से तौबा कर लीजिए और दिल में जो कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है मुसलमान भाइयों के ताल्लुक़ से, दिल को पाक कर लीजिए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इस हदीस से यही मालूम होता है कि अल्लाह की मग़फ़िरत चाहिए तो शिर्क से तौबा कीजिए, शिर्क को छोड़ दीजिए और कीना मत रखिए। बाकी और शर्तें नहीं हैं इसको पाने के लिए। तो मोहतरम हज़रात, खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें अगर सीधे रास्ते पर रहना है, जन्नत का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, तो उसके लिए सुन्नत के रास्ते पर चलना होगा और बिदअत के रास्ते से दूर रहना होगा। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सुन्नत पर अमल कीजिए। बिदअत से नफ़रत होनी चाहिए, बिदअत पर अमल नहीं होना चाहिए, वरना वो गुमराही के रास्ते पर चले जाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिदअत को समझने और उससे दूर रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जन्नत के रास्ते पर रखे जो सीधा रास्ता एक रास्ता है और जहन्नम के रास्तों से, गुमराही के रास्तों से बचाए जो कि बहुत सारे रास्ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।